Hello everyone. Let's start with the next third method, that is expenditure method. Children, this method is also known as consumption and investment method. That will be clear to you. And income disposable method. Now why I am saying this method as income disposable method? जैसे कि नेम से पता चल रहा है, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा करना. अब वो इनकम स्पेंड होगी तो खर्चा होगा, यानी कि इनकम डिस्पोज हो रही है तो एक्सपेंडिचर होगा, चाहे वो कंज्यूमर करे चाहे वो कोई प्रोड्यूसर करे. यानी कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अब चाहे वो कोई फर्म करे, गवर्नमेंट करे, कंज्यूमर करे, कोई भी कर सकता है. ठीक है, इट इज़ इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस. तीन चीज़ें आती हैं इस डेफिनेशन में, तीन चीज़ें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. द सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑन which is the final expenditure. I repeat, it is an final expenditure on final goods and services which is consumed either by the consumer or by the producer, by any firm, by the government also, within the domestic territory of the country in an accounting year. यानी कि तीन बातें आती हैं इस डेफिनेशन के अंदर. वो चीज़ें जो एक साल के अंदर कंज्यूम की गई हों, और उन चीज़ों के ऊपर खर्चा, चाहे वो एक कंज्यूमर कर रहा हो, फर्म कर रही हो, गवर्नमेंट कर रही हो, डजेंट मैटर, और हमारी टेरिटरी के विद इन हुई हो, हमारी कंट्री के विद इन. इट इज़ इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस. नाउ GDP विल बी एडजस्टेड टू फाइंड NNP एट फैक्टर कॉस्ट. हम GDP मार्केट प्राइस पर जो निकालते हैं, इन टोटल जो करेंगे, कुछ क्लासिफिकेशंस हम पढ़ेंगे अभी आगे. इसमें जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं तो हमारे पास NNP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाती है. Clear? So it will be adjusted later. How we will do? We will discuss one. Now about classification of final expenditure. Classification means उसके components क्या क्या हैं, क्या क्या उसमें include होता है. तो क्या क्या include होगा? There are 4 components, children. The first one is private final consumption expenditure. Second is government final consumption expenditure. Third one is investment expenditure, and the fourth one is net exports. So let me start with the first one, private final consumption expenditure. Private final consumption expenditure is the one which will be done by the household consumer. जो एक household consumer कर रहा है, किन चीज़ों के ऊपर करेगा? On the consumption of final goods and services produced in our own economy, right? So it will be done by the consumer. For example, purchase of a car by a household. एक कार खरीदी किसी घरेलू बंदे ने, हाउसहोल्ड कंज्यूमर ने खरीदी है. या मैं ये कहूँ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय अ फैमिली, तो स्कूल फ़ी या बुक्स की परचेजिंग करना, ये सब क्या है? फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड्स कर रहे हैं, राइट. वन थिंग नीड टू बी क्लियर, expenditure will be taken as a final expenditure, right? We will not include intermediate expenditure. Let me clarify this final expenditure and intermediate expenditure again to you with this term. Children, final expenditure refers to the expenditure on final goods and services which will be produced within a domestic territory of the country. वो चीज़ें जो हमारी कंट्री के विद इन प्रोड्यूस हो रही हैं और जो फाइनली रेडी है यूज़ के लिए, right? Which are ready to use. So we can take examples like expenditure on purchase of car. Expenditure on purchase of car, refrigerator by the household is a final expenditure on consumption. It will be included in the national income. Another example like expenditure on purchase of a car or a machine for use by a firm is a final investment expenditure. इन्वेस्टमेंट होगी फर्म के द्वारा, इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. लेकिन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं बेटा? दोज एक्सपेंडिचर्स और दोज गुड्स और इंटरमीडिएट प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट कॉस्ट इज दैट एक्सपेंडिचर और द कॉस्ट विच विल अराइज स्टिल ऑन द प्रोडक्शन. इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कॉस्ट आर मेंट फॉर रीसेल पर्पज. मे बी हमने कुछ ऑलरेडी
लाइक रॉ मटेरियल कह सकते हैं हम, सेमी फिनिश्ड गुड्स कह सकते हैं, अभी वो प्रोडक्शन प्रोसेस में फर्दर जाने वाली हैं जो चीज़ें, या जिन्हें हमें रीसेल पर्पस से ख़रीदा गया है, वो सब इंटरमीडिएट कंजप्शन कहलाती हैं. एंड द एक्सपेंडिचर डन ऑन दिस कंजप्शन इज़ नोन एज इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर. For example, purchase of uniforms for nurses by a hospital, it will be intermediate consumption, right? Transportation expenses by a firm, fees to a mechanic paid by a firm, expenditure on fertilizers by a farmer, all these are the examples of intermediate expenditure. So keep it in your mind, always final expenditure will be included in the estimation of national income, not the intermediate consumptions. So this expenditure method includes only final expenditures. That is, maybe this expenditure done by the consumer, by the producer, by the government. Clear? So now the second one, government final consumption expenditure. वो खर्चा जो गवर्नमेंट ने कंजप्शन के ऊपर किया है. लोगों को सोशल वेलफेयर करती है गवर्नमेंट, लोगों के सोसाइटी के जो हमारे सोशल वेलफेयर किए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो फ्री एजुकेशन के ऊपर खर्चा करके या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करके, पुलिस की जो सर्विसेज हैं या डिफेंस की सर्विसेज हैं, उन लोगों को भी तो सर्विस देनी है पहले, उन्हें भी, उनके लिए भी तो कंजप्शन चाहिए गवर्नमेंट को. उन लोगों को जो फ्री सर्विसेज दी जा रही हैं, क्या उससे पहले, before that, government don't want anything, they will also consume from the market only. So the goods which will be consumed by the government and the expenditure done on that consumption, on such final goods and services which are going to be produced in our economy, is known as government final consumption expenditure, right? वो खर्चा जो गवर्नमेंट कंजप्शन पर कर रही है वो क्या कहलाती है? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, right? Now the third element is like private final consumption expenditure done, government expenditure done. Third, investment expenditure, I'll explain you at last. So fourth expenditure, let me discuss net exports. What is net exports? Children, net exports we will find by export minus import, x minus m. Exports में से हम imports को deduct करेंगे. Net exports हम निकालेंगे कैसे? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है क्या? एक्सपोर्ट्स दो परचेज्ड बाय द नॉन रेजिडेंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, thus it will be included in the GDP at market price and then in the national income. Imports however are deducted. Import को हम deduct करेंगे because goods and services imported are not produced within the domestic territory of the country. एक्सपोर्ट जो हम नॉन रेजिडेंट्स को देंगे जो बाहर जाएगा, इंपोर्ट्स जो बाहर से हमारी कंट्री में आएगा, और क्योंकि वो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो उसे हम रिड्यूस करेंगे, डिडक्ट करेंगे. जब एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट को रिड्यूस करेंगे, डिडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट्स. चिल्ड्रन, वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिस, अगर एग्जाम्पल में सपोज इलस्ट्रेशन में या क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर्स में गिवन है नेट इम्पोर्ट्स इज इक्वल टू 20 करोड़, सपोज नेट इम्पोर्ट्स आर गिवन एज 20 करोड़. अब नेट इंपोर्ट का मतलब है कि एक्सपोर्ट हमारे पास 0 है, इंपोर्ट हमारा 30 है, तो ये इंपोर्ट हमारा नेगेटिव की वैल्यू हो गई. तो ऑटोमेटिकली अगर इंपोर्ट के वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन नहीं भी है तो भी हम इस वैल्यू को डिडक्ट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, दैट इज़ -20 करोड़, राइट? सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. So the third one is investment expenditure, which is also known as gross domestic capital formation, right? In short we can say GDCF. Children, it is the final expenditure incurred by a firm, by a government or a household. Clear? It is a final investment expenditure incurred by the firms, government or a household. Example, purchase of a tractor by a farmer, it will be an investment. Purchase of a taxi by a taxi driver, it's an investment. So certain persons are doing investments in different form, like a purchase of a truck to carry goods by a firm, right? Purchase of a machine by a household,
consumption done by the government for the formation of roads, dams, bridge. There are certain expenditures done by different persons. It may be done by a firm, by a government, or by a household. So the sum total is known as gross domestic capital formation. Children, gross domestic capital formation is equal to gross domestic fixed capital formation, which is also known as gross domestic fixed investment, plus net change in stock. So it is a summation of two items: gross domestic fixed capital formation plus net change in stock. Gross domestic fixed capital formation is also known as gross domestic fixed investment. Capital formation means investment करना, investment को बढ़ाना. It is also known as gross domestic fixed investment. Plus net change in stock. Net change in stock means inventory की investment करना, inventory को बढ़ाना. So it is also a investment. यानी कि हम पता लगा रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक कितना है, जिसके बेसिस पे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालते हैं कि एंड में हमारे पास क्या पड़ा है. तो हमारी वो भी इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगी जो हमारे पास पड़ा है. सो GDCF यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट चेंज इन स्टॉक. अब ये ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हम कैसे निकालते हैं? It is a summation of these three items, these three investments you can say: investment done by a firm, investment done by a government, investment by the households. Those investments are done by a firm. जो बिजनेस के लिए की जाए उसे हम कहते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. अब कंपनी ने कोई लैंड परचेज़ की, कोई असेट परचेज़ की, तो वो क्या कहलाएगी? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. सेकेंड इज़ इन्वेस्टमेंट बाय अ गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करेगी, रोड, डैम, ब्रिज जो बनते हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेज बनते हैं, वो सब क्या है? पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. सो द इन्वेस्टमेंट डन ऑन द पब्लिक असेट्स इज नोन एज पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. थर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट बाय अ हाउस होल्ड मीन्स अ जनरल कंज्यूमर. अब एक कंज्यूमर जो इन्वेस्टमेंट करेगा अपने घर पे, घर बनाने के लिए करे, चाहे वो घर के कोई असेट्स खरीदे, फर्नीचर परचेज़ करे, वो सब क्या कहलाएंगे उसके लिए? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय दी हाउस होल्ड्स. तो अगर इन तीनों इन्वेस्टमेंट्स का टोटल कर दें तो वो किसके को लाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. और इनका डेप्रिसिएशन इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट? तो हम कौन सी वैल्यू को लेते हैं? ग्रॉस वाली को. नेट वाली को नहीं कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे. किसे करेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. अभी इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है. प्लस नेट चेंज इन स्टॉक. नेट चेंज इन स्टॉक हम कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. और इन दोनों को अगर टोटल कर दिया जाए तो वो किसके को आ जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. क्लियर? दिस इज द टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. चिल्ड्रन, देयर इज अ क्वेश्चन: व्हाट कॉजेज इंक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक? इन्वेंट्री स्टॉक के बढ़ने के क्या कारण है? उसे एक फर्म क्यों इंक्रीज़ करके रखती है अपने पास? उसके दो कारण हो सकते हैं. या तो फर्म को लगता है कि फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो वो प्रेजेंट में ज़्यादा प्रोडक्ट करके रखेगा, उसे प्रोड्यूस करके रखेगा, राइट? उसे लगता है कि अचानक से एक्सपर्ट आएगा, राइज आएगा डिमांड के अंदर, तेज़ी आ जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. तो इस सोच को रखते हुए, दिमाग में इस एक्सपेक्टेशन को माइंड में रखते हुए वो प्रेजेंट में क्या करेगा? प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा. दूसरा, अगर करंटली प्रेजेंट टाइम में उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है तो भी उसके पास स्टॉक बचेगा. यानी स्टॉक दो केसेस में उसके पास हो सकता है. या तो उसने फ्यूचर के पर्पस से ज़्यादा प्रोड्यूस करके रखा है. सेकेंडली, अगर प्रेजेंट में प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम हो गई, आउट ऑफ फैशन हो गया, या मार्केट में महंगा बिक रहा था तो डिमांड कम हो गई, कुछ भी रीज़न हो सकता है XYZ. तो ये दो रीजंस हैं. दैट इज़ एक्सपेक्टेड राइज इन डिमांड इन द नियर फ्यूचर, unexpected fall in demand in the current year. These are the two causes of increase in inventory stock with the firm. Clear? Now next is precautions in making estimates of national income by expenditure method. What are the precautions? What things to be avoided or to be included in expenditure method? So the first point is avoid intermediate expenditure. Children, we always include only the final expenditure, not the intermediate expenditure. I already discussed with you, otherwise it arises the problem of double counting, right? Second point is
अवॉइड ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती हैं? वन साइडेड, जिनके लिए पहले कोई काम नहीं हुआ, अनअर्न्ड पेमेंट्स और ट्रांसफर्स वी कैन से। ट्रांसफ़र पेमेंट्स विल नेवर बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ओनली द final income will be included. Examples: charities, donations, gifts, scholarships, these are all the examples of transfer payments, so will not be included. Third, avoid expenditure on second hand goods and financial assets like shares and bonds. जो हमारी सेकेंड हैंड गुड्स होती हैं उन पे किए गए खर्चे को हम इंक्लूड नहीं करते, या किसी फाइनेंशियल असेट्स को सेल और परचेज़ किया हो तो उन पे किए गए खर्चों को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते बेटा, क्योंकि शेयर और बॉन्ड्स हमेशा एक पेपर क्लेम्स होते हैं, पेपर बॉन्डिंग्स होती हैं, पेपर पे ट्रांसफर्स होती हैं, ये पेपर पे नोटेशंस होती हैं, इनकी जो भी होता है दीज आर जस्ट पेपर क्लेम्स एंड आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें कोई गुड्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही है शेयर और बॉन्ड्स में। लेकिन जब किसी पर्सन को हम ब्रोकरेज दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, तो मैंने आपको बताया पीछे मेथड्स में कि उसे हम इंक्लूड करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन के लिए जो भी प्रोडक्शन की जाए, आपको फार्मर्स वाला एग्जांपल दिया था मैंने, कार का एग्जांपल दिया, मोबाइल का एग्जांपल दिया बेटा पीछे मेथड्स में मैंने। सो इट्स द सेम पॉइंट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन और ऑलवेज इंक्लूडेड, बस सर्विसेज के लिए इंक्लूड नहीं किया जाता, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते। सर्विसेज कौन सी होती हैं? लाइक हाउस वाइफ्स आर गिविंग फैसिलिटीज़ टू देयर फैमिलीज विल नॉट बी इंक्लूडेड। सो दिस द रिपीटेड वन पॉइंट टू यू। फिफ्थ इज इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट मीन्स मैंने आपको ये भी बताया था, हर घर की एक रेंटल वैल्यू होती है, इट विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड, आइदर इट इज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड और गिवन ऑन द रेंट टू सम अदर पर्सन। क्लियर? I repeat, intermediate consumptions will not be included, transfer payments will not be included, expenditures on second hand goods will not be included, only commissions are included children, production for self consumption will be included, imputed rent will be included. Clear? So but now if we have to reach from GDP at market price to NNP at factor cost, हमें GDP at market price से NNP at factor cost तक पहुंचना है। GDP at market price अभी जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े उन सब का टोटल जो हमें गिवन होंगे बेटा क्वेश्चंस में, उनको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास GDP at market price आएगी। वो प्रॉपरली क्लियर तब होगा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हम ये देखते हैं GDP at market price से मुझे NNP at factor cost पर पहुँचना है। सबसे पहले ग्रोथ से नेट पर जाना है, तो ग्रोथ से नेट पर जाने के लिए हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करेंगे। देन डोमेस्टिक से नेशनल पर पहुंचना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। वो हम कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डिडक्टेड विद फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। वो क्या आ जाती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाती है हमारे पास, यानी बाहर से कितना आ रहा है हमारे पास और हम कितना पे कर रहे हैं, राइट? उसके बाद हमारे पास जो बचा वो क्या कहलाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक से नेशनल पर पहुंचने के लिए हो गया। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे हम डिडक्ट करते हैं। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को निकाल के, या तो हम इसे अलग से फाइंड आउट करके जो भी वैल्यू आती है उसे यहाँ डिडक्ट कर दें, या हम डायरेक्ट यहाँ प्रोसीजर चला सकते हैं माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड माइनस माइनस प्लस सब्सिडीज़। Clear? We can directly write by finding out value somewhere for this net indirect taxes by deducting subsidies from the indirect taxes. Otherwise we can do this minus indirect taxes plus subsidies, so it will be net national production at factor cost. We will reach at net national production at factor cost. So this is the procedure how we can reach from GDP at market price to NNP at factor cost. ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन गया, डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया, राइट? और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हमने क्या किया? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट किया। दिस प्रोसीजर विल बी यूज्ड इन ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्लियर चिल्ड्रन? This will be the procedure. In the next lecture, I'll explain you about the treatment of items. So be connected. Till then, thank you. Have a nice day ahead.